Good morning, students. Are you listening? Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Jyoti Singh, Yes, sir. study in the class. Yes, sir. कौन बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के? So, due to the bad network, yesterday the classes were suspended. So right now we again today will class the story of The story of Pantu. the story of village Palampur. Don't talk. Good morning, sir. Good morning to all of you. Sir. Here. So, in this first of all, right now we are talking about the non-farm activities. Non-farm activities. So right now, still 2 minutes are left for 10:20. So after 2 minutes we'll start because some students will more join. सर थोड़ा हिंदी में पढ़ाइए. सर. बच्चों को इस लेसन में कुछ और भी समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं. टेल मी, समझ में आया कि नहीं आया? सर वीडियो स्टॉप हो गया है. नहीं वीडियो आपके यहाँ स्टॉप हुआ होगा, यहाँ स्टॉप नहीं हुआ नो है. सर वीडियो स्टॉप हुआ है. द रेस्ट ऑफ सर स्टॉप हुआ है वीडियो. चल रहा है सर. यस सर चल रहा है. हाँ तो ये यस मुझे सर चल रहा है. non-farm activities in Palampur. सर थोड़ा हिंदी में पढ़ाइएगा. थोड़ा हिंदी में पढ़ाइएगा. सर सबको म्यूट कर दीजिए. नो सर. कर रहे हैं बेटा, इसको करना ही पड़ेगा. Now it's 10:20. Please सर don't talk. सबको म्यूट कर दीजिए. आवाज ज्यादा ही आ रही है. All mute, sir. Now I think everyone is going to mute. Mute हो गया है? Yes. Unmute है. Now it's I think unmute. So in the previous classes we have read about the activities which is related with farming, and in this portion
we are talking about the non-farm activities in पालन. मतलब कृषि से संबंधित पहले हमने एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा. अब जो कृषि से असंगठित क्षेत्र है, मतलब कृषि से संबंधित जो क्षेत्र नहीं है, we are talking about in this manner. So first of all, and this one is very common, you have seen the villages, dairy. The other common activity. Clear? मैंने आपको बहुत 6th क्लास में भी पहले भी पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं मैं कि जहां पर खेती बाड़ी के साथ साथ गांव में पशुपालन किया जाता है, तो एग्रीकल्चर प्लस dairy, and dairy means the activities which is related to the milk work. From the animals you will take the milk. So this is known as mixed farming. Recording हो रहा है sir? Mixed farming. So in most of the villages this activity is done. अधिकतर गांव में ये एक्टिविटी की जाती है, इसलिए इसको कॉमन एक्टिविटी में रखा गया है. क्योंकि अगर गांव में कोई खेती बाड़ी करता है तो अधिकतर वो लोग जानवर रखते हैं. क्यों? क्योंकि जो क्रॉप्स के थ्रू जो उनको फॉडर मिलता है, फॉडर माने कि जैसे मान लें कि कोई भी क्रॉप रखे हैं, चाहे गेहूं रखे हैं चाहे राइस रखे हैं, तो उसके उन्होंने मेन जो है सीरियल को क्रॉप को गेट किया, लेकिन उसके बाद उसका जो बचता है स्टॉक जो बचता है, डंठल बचता है, तो उसको वो क्या करते हैं, एनिमल्स के लिए उसको वो फॉडर बना लेते हैं. और जब एनिमल्स के लिए उसको फॉडर बनाएंगे तो दिस फॉडर विल यूज इन व्हाट, डेयरी एक्टिविटी. क्योंकि ये फॉडर जो है एनिमल्स या कैटल उसको खाएंगे, फीड करेंगे, और इस फीड करने से देन दे विल गॉट द व्हाट, मिल्क. उनको उनसे क्या मिलेगा, उनको मिल्क मिलेगा, या बाकी चीजें को गेट कर सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स, चीज, घी, वट एवर इट. सो दिस इज द कॉमन एक्टिविटी विच इज फाउंड इन villages. Clear? Most of you are clear this. So the people of Palampur feed their cattle various kinds. In this lesson we have talked about the two kinds of rainy crops. And in this lesson these main crops are ज्वार and bajra, and this is according to the lesson of Palampur. Clear? They grown this, they cut this, and by the cutting of this they will give this as a fodder to the animals or cattle. Clear? Because when we have read about the Palampur, we know that three kinds of crops will grown there. The one is jowar and bajra in the Rabi season. In the Rabi season they have grown this, then they cut it after 1 or 2 months. Then after, according to the Palampur, so in this manner, that how that another crop is what? The another crop is
wheat. They also grown the wheat in Palampur. You have seen this, wheat or not? Wheat. And after cutting this, they also put what? Potato. And not only this, some farmers also grown sugarcane. And the sugarcane take 12 months to cut and harvest this crop. So clear? So this one. Then what will happen? The milk, when they collect the milk, this milk, when they collect the milk, this milk is reached to Shahpur. This milk is reached to Shahpur. And the Shahpur, sorry, Raiganj. This milk is reached to Raiganj. This meat is reached to Raiganj, which is nearby the Palampur, and it is a big village. And the Raiganj is a big village. Then what? Palampur, and where this dairy activity or dairy will be found, because mostly in the big villages this kind of dairy activity work will be done. Then the two traders from Shahpur, two traders from the Shahpur town had set up collection cum chilling centers at Raiganj, from where the milk is transported to far away from the towns and cities. तो दो जो व्यापारी हैं शाहपुर के, उन्होंने एक कलेक्शन सेंटर बनाया है रायगंज में, जहां से वो मिल्क को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, और वहां से दूध और भी दूसरे गांव और शहरों में जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से ये एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है जो पालमपुर के लोग जो अपने मिल्क को कहाँ लेकर सोल्ड करने के लिए जाते हैं, और वहां पे और फिर रायगंज से दो जो ट्रेडर्स हैं उसको अलग अलग डिफरेंट पहले यहाँ से पालमपुर से रायगंज में आता है, और रायपुर से या बाकी जगहों से जो शाहपुर से जो है, फिर शाहपुर के दो हैं जो रायगंज से इसको कलेक्ट करके बाकी जगह उसको सोल्ड आउट करते हैं, वहां से डिफरेंट सिटीज में और टाउन्स में जाता है। और किस तरह से यहाँ जो डेयरी वर्क है किस तरह से जुड़ा हुआ है, और डेयरी वर्क भी कह सकते हैं कि हालांकि उसका नॉन फार्म एक्टिविटी है, लेकिन स्टिल इट इज आल्सो बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर, बिकॉज इफ द एग्रीकल्चर विल नॉट डन, कि अगर एग्रीकल्चर नहीं होगी, सो हाउ द एनिमल्स गेट द फॉडर। So it is also a non-farm activity, but basically it is primarily based on what? Crops. Clear? But it is a non-farm activity, and it is also come to the in the sense of that mixed farming. Students, are you listening? Yes, sir. Yes, sir. तो ये समझ में आ गया, इसमें कुछ है नहीं। डेयरी किस तरह से नॉन फार्म एक्टिविटी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो किस तरह से एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। और अपने गांव में भी आसपास में देखते हैं जो बच्चे। So what is com chilling center? कौन सा सेंटर? कॉम चिलिंग सेंटर लिखा है। कॉम चिलिंग का देखिए मतलब ऐसा है, आप जो बच्चे गांव में रहते हैं वो नहीं समझ पाएंगे, जो बच्चे शहरों में रहते हैं अगर वो पैकेट का दूध लेकर आते हैं, ठीक है, जो बच्चे शहरों में रहते हैं और पैकेट का दूध लेकर आते हैं, तो उस पैकेट के ऊपर लिखा होता है 8 डिग्री सेल्सियस, कि उस दूध को जो पेस्चराइजेशन मेथड है उसको 8 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है, इसलिए वो दूध जो है जब आता है 1 या 2 दिन सर्वाइव कर जाता है। अदरवाइज जानते हैं
कि दूध कितनी देर जल्दी फट जाता है, तो इसको एक पेस्चराइजेशन मेथड से रखते हैं सर्वाइव करने, इसलिए इसको हम चिलिंग का मतलब उसको ठंडे वातावरण में रखते हैं जिससे वो बच जाता है, अदरवाइज वो फट जाएगा। ठीक है, तो वही कैंप चिलिंग सेंटर। दूध को जैसे जो ड्रिंक की बोतल है, जो पेप्सी और कोला, उसको ठंडे में रखते हैं लेकिन वो फटती नहीं है, लेकिन दूध जो है गर्म उसमें होगा एनवायरनमेंट में तो फट जाएगा, इसलिए उसको चिलिंग सेंटर में उसकी गाड़ियां जो भी होती है उसको भी ठंडे में रखती है उसको। ठीक है, और कुछ? सर कम से कम दूध को कितने दिन तक रख सकते हैं? उसको रखने के ऊपर है, लेकिन अधिक से अधिक क्या है, सुबह से शाम तक अपने फ्रिज में देखते हैं, बहुत चिल्ड में रखेंगे तो 2 या 3 दिन रख सकते हैं, उसके बाद खुद ही उसका टेस्ट खराब होने लगता है। लेकिन जो पैकेट बंद दूध होता है वो भी 2 या 3 दिन तक चल जाता है, इससे ज्यादा नहीं चल सकता। ठीक है सर। क्योंकि वहां से ट्रांसपोर्ट, देखिए जो पैकेट जब बनता है तो उसको ट्रांसपोर्ट होकर आता है, बड़े बड़े शहरों में जब जाएंगे तो अमूल का दूध है चाहे मदर डेयरी का दूध है तो उसको 1 दिन तो आने में लगता है, तो अधिक से अधिक मैक्सिमम जो डेट होती है 2 या 3, 15 दिन नहीं रह सकता है, 2 या 3 दिन। हम मिल्क प्रोडक्ट रह सकते हैं लेकिन दूध नहीं रह सकता 15 दिन तक, 2 से 3 दिन लास्ट है ना। ये तो मिल्क पाउडर कैसे बनता है? बात ही नहीं, क्या चीज? हाँ, मिल्क का पाउडर बन जाता है तब वो कितने भी दिन तक आप ड्राई करके रखते हैं, क्योंकि मिल्क पाउडर आता है जिससे उसे घोल कर मिल्क बनाते हैं, तो वो अलग चीज है। इस पॉइंट में अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, किसी को कुछ पूछना है इस पॉइंट में, किसी को कुछ पूछना है? सर मिल्क पाउडर कैसे बनता है? मिल्क पाउडर साइंस वाले टीचर से पूछेंगे तो वो बताएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, वही सर बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट में कुछ नहीं पूछना है, वैसे कोई चीज पूछ मैं बता चुका हूँ। देन मूव टू द अनदर पॉइंट। आपका कनेक्शन सही नहीं है, कट जा रहा है वीडियो बार-बार। वो नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वन, वीडियो has been stopped. Video is stopped, sir. सर वीडियो इज स्टॉप्ड। Video has stopped, sir. यस सर। फॉर एवरीवन। सर आपका कनेक्शन सही नहीं है सर। सर नहीं। Sir, now video is coming. यस सर। Now due to Then network stop. problems, all kind of problems you are facing. Now, Sir, how many types of grass? grass, How many types? many kinds of grass. आप कहाँ रहते हैं? You belong to मतलब आप you are living in village or city? City. Village. Those students who are living, listen, those students who are living in village, they have seen the many kinds of grass, and those students who are living in सर वीडियो स्टॉप हो गई है। यस सर। यस सर। सर आपका कनेक्शन सही नहीं है। second, small scale industry, small scale सर manufacturing. आपका वीडियो ही नहीं आ रहा है। Stop हो गया सर। Video is stopped, sir. Video is stopped, sir. Just hold on. And sound is also not coming. Yes, Piyush. Yes, Sachin. Please solve your problem, sir. Both family and not clear. देखिए उसमें देखिए आप Piyush, क्या चीज म्यूट किया है? सर Hello. अब सर हो रहा है, नेटवर्क शायद आ गया सर। नहीं आ रही है सर वीडियो। आ रही है सर। आ रही है सर।
आ रही है। आने दो। Now you have please shut your mouth. बेटे किसको प्रॉब्लम आ रही है? सर उधर से कनेक्शन सही नहीं आ रहा है सर, वीडियो साफ नहीं आ रहा है। सर वीडियो बार बार बेटा stop- वीडियो सही नहीं आ रहा है आपका। Now आ रहा है सर। ऐसा है बेटे कि आपकी तरफ हो सकता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो, इसलिए वीडियो रुक रुक के चल रहा हो। ठीक है, तो उसके लिए परेशान ना हो, आपका नेटवर्क सही रहेगा तो वीडियो सही चलेगा। ठीक है। Now the second point related the small scale manufacturing or the small scale industries which set up in the mostly villages, not mostly villages, in some villages, because this activity is also the part of non-farm activity. And not only this, the example which is given in the book, only this kind of industries can be set. There can be more industries which can be set in the villages. So example is if you see in the book what kind of industry it is given. The example of what? In this example, mostly not this, in the villages, 50 people were engaged. And this industry is related with any kind of industries. We can talk about this like in this manner. For example, from the sugar cane, they can make the jaggery. So for this, it is also kind of industries. Not only this, any kind of plant will also make, like the beedi making. So this kind of industries can be set, in which this industry is not related to the towns which have a high industry. The simple industry which needs some amount of labor. कि मतलब कुछ संख्या में उनको मजदूर चाहिए और मजदूरी के थ्रू जो है कि अपने आसपास में के गांव में देखती हैं। जैसे मान लीजिए कि एक फैक्ट्री लग गई चावल की, ठीक है, चावल का मतलब कि क्या करते हैं, जैसे मैंने मान लिया कि शुगर केन से पता है, तो शुगर केन भी क्या है, शुगर केन भी एक फार्मिंग से रिलेटेड है। तो राइस की मान लीजिए, और राइस से तो राइस पहले तो पैडी होगा, धान होगा, धान से एक मिल लगा दी अपने राइस मिल, तो राइस मिल लगा दी तो धान से आप चावल निकालते हैं और चावल को मार्केट में सोल्ड आउट करते हैं, बेचते हैं। तो ये भी इंडस्ट्री हो गई। और भी किसी तरह की इंडस्ट्री लग सकती है। तो गांव के अंदर क्या है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, ठीक है, हो सकता है ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जैसे इसमें मिश्री लाल का एग्जांपल लिखा है कि मिश्री लाल हैज परचेज अ मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन। मैकेनिकल माने क्या, बिजली से। आलोक पांडे बहुत आवाज आ रही है, क्या कर रहे हो? कि मिश्री लाल क्या करते हैं, उन्होंने एक मैकेनिकल बिजली से चलने वाली एक
एक मशीन ली जिससे वो शुगर केन को क्रश करते हैं। क्रश करने के बाद उससे जैगरी बनाते हैं और उस जैगरी को फिर अपने बुलक कार्ट में रखकर मार्केट में सोल्ड आउट करके आते हैं। ठीक है, देन ये आपकी इंडस्ट्री हो गई। ये सेकंड पॉइंट है। इसमें कोई अगर पूछना चाहता है, आई विल गिव यू द चांस टू आस्क। Students, are you listening? Students, Yes, sir. Yes, sir. इसमें कुछ पूछना है? इसमें कुछ बहुत आसान है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में कुछ भी हो सकता है। जैसे बुक में मिश्री लाल का एग्जांपल लिखा है, आपको एक मैंने एक और एग्जांपल बताया। जैसे मान लीजिए राइस मिल है, तो पैडी होता है, धान से चावल निकालते हैं, उसको मार्केट में बेचते हैं, तो ये भी एग्जांपल। चप्पल बनाने की फैक्ट्री, किसी चीज की भी फैक्ट्री इंडस्ट्री लग सकती है। ठीक है, और बताइए किसी को इस पॉइंट में पूछना है? हेलो हाँ बोलिए। सॉरी सर राइस मैंने राइस का एक एग्जांपल दिया, जिस तरह से शुगर केन का एग्जांपल दिया कि शुगर केन को मिश्री लाल, मीट जो है, एक एग्जांपल है कि मिश्री लाल ने क्या किया, एक मैकेनिकल एक मशीन ली, मैकेनिकल एक क्रशिंग मशीन ली। उस क्रशिंग मशीन में वो शुगर केन को क्रश करता है, क्रश करके उससे जैगरी गुड़ बनाता है और गुड़ को मार्केट में बेच के आता है। ये मुझे आवाज सुनाई दे रही है, मैं सबको म्यूट कर दूंगा। मैं पूछने का मौका देता हूँ, उसका क्या बात करेंगे आप? ठीक है, तो किस तरह से ये इंडस्ट्री उसने बना ली है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट किसी को कुछ पूछना है नहीं तो नेक्स्ट पॉइंट में मूव कर रहे हैं। एंगेज का मतलब रहता है, एंगेज का क्या चीज? सर एंगेज का मतलब 50 पीपल एंगेज। एंगेज माने कि क्या मतलब? उसमें संलिप्त है, लगे हुए हैं। संलिप्त माने कि लगे हुए हैं। जैसे कोई इंडस्ट्री है उसमें लोग लगे रहते हैं ना, तो काम करते हैं, तो वो एंगेज है। ठीक है, किसी भी काम को आप करते हैं उसमें लगे रहते हैं, तो वही एंगेज है। ठीक है, नाउ मूव टू द थर्ड पॉइंट। एंड इन द थर्ड पॉइंट sir, who provide the labor? yes, I will provide the note, but first of all listen. The third point is related with the shopkeepers of Palampur. First activity related to the dairy, another is small scale manufacturing, and the third one is shopkeepers. So in the mostly villages, or we can say all the villages, some shops are available. So the shopkeepers, where you will buy your daily products, daily use products. So the shopkeeper or the shops are essential and the necessary in the villages to help the people to buy anything. So now in this shopkeepers, so here in the shopkeeper traders buy the things from the towns and also sell in the cities. So some traders are wholesalers and some others are retailer. So it is also the part of non-farming activities where the people were not engaged in farming, or we can say the some people who are also engaged in farming, they have started shops to make much more money profit from that shops. Clear?
Clear? और बच्चों लास्ट पॉइंट, we have to start. The fourth point is related with transport. Right now, day by day, the technology, the people are engaged in the transport also. Means some people who buy the tractors, jeeps and trucks and try to make money from that purposes. That in this, that the transport, the varieties of vehicles in those who are connecting from Palampur to Raiganj. And in this, not only the motor vehicle, the many earlier and the traditional method of the transport they are using. कि पुराने समय के टांगा हो गया या बुलक कार्ट हो गया, इस तरह के उसको भी वो यूज करते हैं. क्लियर है? देखिए जैसे एग्जांपल किशोरा एक फार्म लेबरल है, जिसकी जो एक लेबरर है तो उसने अपनी फैमिली की इनकम को बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लिया और बैंक से लोन लेकर उसने क्या करता है, वो एक गाड़ी खरीदी और उस गाड़ी से वो बफलो का मिल्क जो है उसको सेल करता है. और सिर्फ सेल ही नहीं करता है, उसके अलावा भी वो जो रिवर जो है गंगा, वहाँ से मिट्टी बालू लाद कर आता है, बेचता है वहाँ से. और उसके अलावा भी जो शुगर केन जो क्रश होती है जिसके बाद से जैगरी फॉर्म होती है तो उसको भी वो सप्लाई. तो हाउ द ट्रांसपोर्ट is also, it's a non-farm activity and help the persons who are benefited from that. Clear? Clear? Students, सर रीसेलर और सर होलसेलर में सर क्या डिफरेंस है? ऐसा डिफरेंस है कि होलसेलर माने कि जैसे दुकान पे जाते हैं तो कोई ऐसी दुकान होगी जैसे आप जाते हैं कि सर कि आप मुझे साबुन दे दो, तो साबुन एक नहीं देगा, वो सीधे का सीधे डजन देगा, डजन माने कि दर्जन देगा. और वहीं रिटेलर जो है कि मांगेंगे तो वो एक भी दे देगा. तो ये कह सकते हैं, ये तो मैंने पहला बता दिया. दूसरा, कभी कभार होलसेलर के पास होलसेलर आपको क्या करेगा, कोई भी सामान नहीं देता है. तो क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ रिटेलर जाकर सामान लेते हैं और वो लेकर आता है, आप लोग रिटेलर से सामान लेते हैं. मतलब खुदरा विक्रेता, रिटेलर मतलब खुदरा विक्रेता जो खुले में बेचता है सामान, और एक होलसेलर जो किसमें बेचता है, जो थोक के भाव में बेचता है सामान. तो यही है. और कोई? Students, are you listening? Sandeep Singh, Yes, sir. are you listening? Yes, sir. So this lesson is completed. If you have any doubt, you can ask.
No, sir, no doubt, sir. It was taught by Sushil Pandey, sir, and you also taught it. So there is So no you have problem. understood completely. So another one, anyone who have doubt, they can raise the hands. Because tomorrow we'll start the another lessons. Anyone else? Anyone else? Yes, Harshvardhan. Harshvardhan, are you listening? Harshvardhan. Yes, sir. Yes, what the problem you have? सर द प्रॉब्लम इज दैट सर ट्रांसपोर्ट सर थोड़ा एक बार और थोड़ा सा समझा दीजिए सर देखिए ट्रेडिशनल बुलक देखिए ट्रेडिशनल का मतलब जो है जो बिना मोटर के चलाए जाते हैं, जैसे पुराने मान लीजिए कि रिक्शा हो गया, रिक्शा हो गया तो रिक्शों को आप खुद टांग से चलाते हैं, खींचते हैं, या बुलक कार्ट हो गया, या बोगी हो गई, या इक्का हो गया, इक्का गाड़ी हो गई जिसको घोड़े से खींचते हैं, तो यह ट्रेडिशनल मेथड है। लेकिन जो मॉडर्न मेथड है, मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसमें मोटर लगी हुई है, जो मोटर व्हीकल है, ये सारा का सारा क्या है, क्या है, सारा का सारा मॉडर्न है। तो यही ट्रांसपोर्ट का मेथड है और कुछ नहीं है। और कुछ सर आज जब पढ़ाए तो नेट सर आप जब पढ़ाए थे तो नेट नहीं कनेक्ट कर रहा था, पूरा कैंसिल हो गया। बेटा देख लीजिए कहीं इसको वीडियो मिल यूट्यूब जाए। अपलोड हो जाएगा सर? हाँ ठीक है, चलिए और बताइए, और किसी को कुछ पूछना है? यूट्यूब अपलोड कर दीजिए सर। और पूछिए। ठीक है सर, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? रेज द हैंड्स हु कैन आस्क द क्वेश्चंस। नंदिनी सिंह, नंदिनी, are you listening? Sound is coming to you or not? आ रहा है आवाज? नहीं? नहीं है, साउंड ही नहीं आ रहा है। नंदिनी, नीलेश कुशवाहा, नीलेश कुशवाहा, अनम्यूट कीजिए Yes, इसे। sir. Are you understanding or not? Yes, sir. Whole class. Anjali Singh, unmute yourself. Are you listening my voice? Are you listening? You have doubt or not? Anyone else? Pushkar, Priya Dutt Singh, Priya Dutt, Yes, sir. are you listening?